وقف ترمیمی بل کی مخالفت اور اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی جے پی سی 1 اکتوبر بروز منگل بنگلور کے دورے پر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی 1 اکتوبر بروز منگل بنگلور کے دورے پر آ رہی ہے۔ اس کے پیش نظر بنگلور میں آج بروز جمعہ ملی تنظیموں، اداروں، وقف اداروں کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے تحت ہوئی اس میٹنگ میں جے پی سی کے ممبر اور راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین، کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود وقف اور ہاؤسنگ BZ ضمیر احمد خان، کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین انور بادشاہ، محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری منوج جین و دیگر نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں تبادلہ خیال کے لیے مختلف ملی تنظیموں، علماء کرام، دانشوروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ جے پی سی کے روبرو مسلمانوں نے کرناٹک کے موقف کو کس طرح پیش کیا جائے، وقف ترمیمات سے ہونے والے نقصانات، اثرات اور مسلمانوں کی تشویش کو کس طرح آگاہ کیا جائے اور کن کن بنیادوں پر وقف امینڈمنٹس کی مخالفت کی جائے، اس طرح اس میٹنگ میں کھل کر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علماء کرام اور مختلف ملی تنظیموں کے نمائندوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ وزیر اقلیتی بہبود وقف اور ہاؤسنگ BZ ضمیر احمد خان نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سدھرامیا کا بیان بھی اس سلسلے میں سامنے آ چکا ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن اور جے پی سی کے ممبر ڈاکٹر سید ناصر حسین نے کہا کہ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کی اب تک 7 میٹنگیں ہوئی ہیں۔ 6 میٹنگیں دہلی میں، 1 میٹنگ ممبئی میں ہو چکی ہے۔ تمام میٹنگوں میں وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ وقف ایکٹ کے امینڈمنٹس کی پرزور مخالفت کی گئی ہے۔ اس وجہ سے جے پی سی کی میٹنگوں میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اویئرنیس اس بل کے خلاف اور کن باتوں پر جو ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں پورے 44 جو امینڈمنٹ آئے ہیں، 44 کے 44 امینڈمنٹ کو ہم لوگ اپوز کر رہے ہیں، کیونکہ نہ امینڈمنٹ میں دم ہے، نہ ہی جو انفارمیشن ان کے پاس ہے جس کے بنا پہ امینڈمنٹ لائے ہیں وہ انفارمیشن میں کوئی دم ہے۔ پورا مس انفارمیشن یہ لوگ خود ہی پھیلا رہے ہیں۔ مس انفارمیشن وقف کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلم اداروں کے خلاف مس انفارمیشن پھیلا کر اور اس کے دم پہ یہ بل لے کے آئے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان کی منشا ہے، ان کی سازش کیا ہے۔ یہ اگر یہ بل پاس ہو گئی، اگر یہ امینڈمنٹس آ گئے تو کیا ہمارے اداروں کے لیے دقتیں پیدا ہونے والے ہیں، سماج میں کیا غلط فہمی پھیلنے والے ہیں، سماج میں کیا دقتیں پیدا ہونے والے ہیں، یہ سارا ہم عوام کے بیچ میں جا کے سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پہ 1 تاریخ کو جے پی سی آئے گی، جے پی سی تو جے پی سی جب آئے گی تو ایز اے وٹنسز جانا پڑتا، کیونکہ وقف بورڈ کا میں ممبر ہوں تو وقف بورڈ کی طرف سے بھی پریزنٹیشن ہونا ہے۔ کوشچنر وہاں سے ایک آیا ہے، انہوں نے سوال پہ کیا جواب دینا، اس چیز کو لے کے ایک بیٹھک تھی آج۔ جے پی سی میں اختلاف ہوا اور ہنگامہ ہوا، یہ میٹنگ میں پہلے دن سے جے پی سی میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ جو اپوزیشن اب تک 6 میٹنگ دلی میں ہوئے ہیں، 1 میٹنگ ممبئی میں ہوئی ہیں۔ سارے میٹنگز میں ہنگامہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہر پوائنٹ پہ، ہر سیکشن پہ، ہر کلاس پہ، ہر امینڈمنٹ پہ ہم لوگ ویروڈ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں، ترک مانگ رہے ہیں، نہ ڈیٹا مانگ رہے ہیں، انفارمیشن مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کے پاس نہ جواب ہے، نہ ڈیٹا ہے، نہ انفارمیشن ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو ہنگامہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب پارلیمنٹ میں جو ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد جے پی سی بنی، اب جے پی سی کے اندر کم سے کم ان کو ہمیں ڈیٹا دینا چاہیے، انفارمیشن دینا چاہیے۔ اب کوئی آپ کے پاس آیا ہی نہیں، کوئی امینڈمنٹ لانے کے لیے پوچھا ہی نہیں، نہ مسلم کمیونٹی کے کوئی نمائندے آپ کے پاس گئے، تو اپنے آپ کب کیسا سمجھ لیے کہ اس میں پرابلم ہے؟ اپنے آپ کیسا آپ سمجھ لیے کہ 10 سال میں کوئی اس میں گھوٹالہ ہی گھوٹالہ رہے؟ جب پیسہ ہی نہیں ہے، ریونیو ہی نہیں ہے، اور سیلریز دینے کے لیے، مینٹیننس کے لیے جب پیسہ نہیں تو گھوٹالہ کہاں سے ہوگا اس میں؟ جگدیپ کا پال جو چیئرمین ہیں، ان کا کیا کہنا ہے سر میٹنگ میں؟ نہیں، ابھی جے پی سی چل رہی ہے، ہم سارے جگہ سے اسٹیک ہولڈرز کو بلائے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹور کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں،
कुछ लोगों को बीजेपी उठा के बिठाई है, वो लोग आगे पक्ष में बात कर रहे हैं। अब जब रिपोर्ट बनने का टाइम आएगा, जब देखेंगे किसका क्या रवैया रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कर्नाटक बेंगलुरु में 1 तारीख को जेपीसी के मेंबरान आ रहे हैं, उसकी क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ तमाम जमाअतों के नुमाइंदे, एडवोकेट्स, अफसरान और इसी तरह उलमाए कराम सब मिलकर गौर व फिक्र किए हैं कि कैसे सारी बातों को हम जेपीसी के सामने रखें और हमारे तरफ से कैसी नुमाइंदगी होना चाहिए ताकि भरपूर नुमाइंदगी हो और अपनी जो परेशानी है उसको उसके सामने रखा जाए। तरकीबें जो किया जा सकता था वो पूरी किए हैं, लेकिन हमारा ईमान हमेशा से ये है कि वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, हम अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं। ये तरकीब के हिसाब से हमने इस काम को अंजाम दिया है, बक़िया अल्लाह मालिक। क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? नहीं, इस मीटिंग में जो है एक तो टोटली कर्नाटक हुकूमत भी जो है इसे अपोज कर रही है, कम्युनिटी भी टोटली अपोज कर रही है। अब जेपीसी का सामना करना है तो किस ढंग से सामना करना है, उस सिलसिले में आपसे एक मुशावरत थी। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अपोज करना है, किस अंदाज से अप्रोच होना है, इसमें एक मुशावरत थी। तो बेबुनियाद बातें थे, उसके ऊपर ये बिल लाया जा रहा है या गलत फहमियों की बुनियाद पर, प्रोपेगेंडों की बुनियाद पर या बदनीयती की बुनियाद पर इसको बनाया गया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उलमाए कराम हैं और तमाम लोग हैं, ऑफिसरान भी हैं, वकला भी हैं, ये सब मिलकर एक हिकमत अमली के तहत इसकी मुखालिफत बिल्कुल करेंगे। शुक्रिया। इसकी मुखालिफत हर सतह पर करने का फैसला लिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मीटिंग हुई है और जैसे कि हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जेपीसी जो कमेटी है वो जा रही है, जबकि हमने पहले ही इसको रिजेक्ट किया है। बिल को बातचीत करने के लिए वो आ रहे हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम इस बिल को कभी भी इसकी तायद नहीं करेंगे, इसकी हम मरते दम तक भी मुखालिफत करते रहेंगे। हम कभी भी इसको हम कभी भी इस बिल को हम मुखालिफत ही करेंगे, कभी इसकी तायद नहीं करेंगे। तो मुखालिफत की बात हुई और चंद बुनियादें भी तय की गई हैं कि किस तरह बिल जो है नुकसानदेह साबित हो। नहीं, बहुत सारी, जैसे 44 जो उसमें तरामीम को लाया गया है उसमें तमाम ही के तमाम नुकसानदाह हैं। उसमें क्योंकि वक्फ़ जो है वो मुस्लिम इमलाक का मसला है, ये मुसलमानों के हवाले है, ज़माने से ये होता आ रहा है और मुसलमानों ने आज तक उसकी हिफाजत की है। जैसे इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब के बाशिंदे शहरी हैं तो मुसलमान भी इस मुल्क के शहरी हैं, आज तक वो हिफाजत करते हुए आए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो हिफाजत करेंगे। इसको खिचड़ी बनाने की कोशिश ना की जाए, खिचड़ी बनेगी तो फिर वक्फ बोर्ड का जो मकसद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चंद जमातों और सूफिया के जरिए ये बात बीजेपी रखने की कोशिश कर रही है कि ये बिल जो है सही है, ये तरमीम जो यानी इस सूफिया की तरफ से मैं नहीं समझता है कि वो उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को पढ़ा हो या उसके नफ़ा और नुकसान को जानते हो। सिर्फ यानी उन्होंने किसी से सुना और बोल दिया। जो तरामीम मरकज़ी हुकूमत चाहती है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है और जिन्होंने कहा हम उसकी तायद करते हैं, मैं उन सूफिया को गुजारिश करूँगा फिर दोबारा उसको पढ़ें और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर किसी से पढ़ के उसको समझदारी के साथ सुनें। जी माशाल्लाह, ये वक्फ़ के सिलसिले में जो अहम मीटिंग हम लोगों के दरमियान हुई है ये बहुत अच्छी रही और ये माशाल्लाह वो मिल्लत मुस्लिमा का जो इत्तेहाद है वो ऐसे मौके पर ख़ास अहमियत रखता है और ये हम सब के लिए लाए अमल तय करता है। और इंशाअल्लाह हम सब की पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ एक्ट में तरमीम करना चाह रही है वो हम लोग पूरी तरह से मुत्तहिद होकर के तमाम के तमाम मसालिक के अफराद मिल कर के उलमा कराम के साथ और तमाम के तमाम मिल्लत के अफराद के साथ ये कोशिश रहेगी कि वक्फ में किसी किस्म की तरमीम न होने पाए। जो हमारे बुज़ुर्गों का असासा और हमारे असलाफ का जो छोड़ा हुआ और ये वक्फ किया हुआ जो जायदाद और अज़ाखाना और मस्जिद और मदरसा है ये हर हाल में उसी एतबार से बाकी रहे, तो ये हम सब के लिए बहुत बेहतर नतीजा हासिल हो। वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और बाकायदा उसकी मुखालिफत में शाना बशाना जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और वहाँ के जितने भी खुद्दाम हैं साथ हैं और मुखालिफत
पुरजोश के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी नुमाइंदगी करेंगे तो क्या बात रखी जाएगी, क्या कहा जाएगा? बात रखने के बाद में टाइप करो भाई आप। एक छोटा सा पैगाम भी लोगों तक जाए तो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख 27 सितंबर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से एक मीटिंग तश्कील दी गई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके ताल्लुक़ से मरकज़ से एक ग्रुप आने वाली है, उनके सवालात के जवाब देने के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम करेंगे वो कौम व मिल्लत के हक़ में बात करेंगे और उसके ताल्लुक़ से काम करेंगे। किसी भी कीमत पर वक्फ की प्रॉपर्टी गोया अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है। ये वैसे तो सारी दुनिया अल्लाह ताला ही की है, आम फहम ज़बान में कहा जाए तो अल्लाह ताला की। इसको कौम से दूर और कौम से नुकसान होने का कोई बाइस बनने हम नहीं देंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश है ईमान और इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ तरमीमी बिल जो लाने वाले हैं उसको हम नाकारा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्फ बोर्ड से वक्फ तरमीमी बिल और वक्फ प्रॉपर्टी से कौम और मिल्लत के फ़ायदे के लिए जितनी कोशिश करना है करेंगे और कौम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से भी हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ MP नासिर अहमद साहब की सदारत में इजलास हुआ था जिसमें ज़मीर खान साहब मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब थे और पूरे वकला ज़िम्मेदारान हज़रात उलमाए किराम तमाम और मुत्तहदा महज़ के ज़िम्मेदारान मिली कौंसिल वगैरह सब थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर ये तय किए हैं कि इंशाअल्लाह अभी जो होने वाला ये जो मीटिंग में जो आएंगे वो लोग उनसे जो है हम लोग बराह रास्त बात करेंगे और जहाँ तक हो सके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म भी करेगा। तो यहाँ पर बेदारी भी होनी चाहिए अवाम में और जैसा जिस अंदाज में उसकी मुखालिफत में QR कोड और मुहिम भी चलाई गई। तो उसके लिए अल्लाह के फजल से 24 तारीख को नवंबर 24 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से वजाहत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैलेस ग्राउंड में होने वाला है। तो उसमें कोशिश हम करेंगे कि हर घर में हर फर्द को ये मालूम हो जाए कि वक्फ क्या चीज़ है, उसे कैसे बचाना चाहिए। इस बेदारी काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। JPC वाले 1 तारीख में कर्नाटक को पहुंच रही हैं। उनकी JPC कमेटी वक्फ क्या अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है वो उसके हमें पूरा भी बैठ को हमारे उलमा हमारे मिनिस्टर साहब MP नासिर हुसैन साहब उन्होंने भी JPC मेंबर भी है। बाद में उसके साथ हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे लीगल टीम पूरे बैठ को हमने डिस्कस कर रही है उसे क्या जवाब हमें देना का तो तैयार कर लिया आज बैठ को। वक्फ बोर्ड की जानिब से बाकायदा मुखालिफत की गई 100% मुखालिफत है। मैं रिजेक्ट भी करें बिल ऑलरेडी और इन्फॉर्मेशन जो पूछे थे पहले वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना का तो हमारे हुकूमत कर्नाटक के सिद्धरामैया जी भी हमने डायरेक्शन दिए इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन भी क्या भी कुछ भी नहीं दिया उनका। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रुजू करने का स्टेट गवर्नमेंट से सिद्धरामैया जी उन्होंने बोले हैं ना ऑलरेडी प्रेस मीट करे हैं वो हमें पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं वो बिल को तो बोले हैं ना। ओके सर, मैं कोई रिटर्न में प्रपोजल वगैरह गया वो? नहीं रिटर्न में नहीं क्या गया हमें दी रिटर्न में हमें मैं भी प्रेस नोट करके प्रेस नोट भी दूँ मेरे तरफ से। मैं एज ए कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते से मैं भी उनको हमें पूरा एवरी 144 जो एक्ट अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं उसे 44 एक्ट को भी मैं जवाब दे को रिजेक्ट कहीं को कर रहे तो उसका डिटेल्स पूरा बेच को रिजेक्ट करें। तो आपका भी वसी एक्सपीरियंस है सर, इसमें वास्ट एक्सपीरियंस है, किस बुनियाद पर एक कैसे इफेक्ट होगा सर? ये क्या है हिंदुस्तान में मालूम है ना अब क्या हुकूमत BJP की है मुसलमान टारगेट ना वो मुसलमान को टारगेट करके वक्फ बिल्कुल लाना चाहो इनको तकलीफ देना है कौम को तो यथार्थ इसका है। देखिए ये जो आज BJP की सरकार की तरफ से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है ये स्ट्रक्चरल लेवल पे ये बिल्कुल हमारी कौम के ख़िलाफ़ और जो वक्फ बोर्ड का जो एक सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है।
ये आज जो अमेंडमेंट होगा उसकी वजह से डिप्टी कलेक्टर से लेके कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उसको जो वफ़ की प्रॉपर्टी है, जो इदारे की प्रॉपर्टी है, उसे एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर कर सकने की एक गुंजाइश रहती है। क्या है, ये पिछले 500 साल से, 600 साल से, 100 साल से, 50 साल से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, ये जो वफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कहीं पे वफ़ बाय यूज़ है, कहीं वफ़ बाय डोनेशन है, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये वफ़ की बिल जो लोगों ने, बीजेपी का एक मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर हम कहीं खड़ के अगर नमाज पढ़ दें या कोई दुआ कर दें तो वहाँ की जगह वफ़ हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने अपने पैसों से, अपनी कमाई से यहाँ पे वफ़ किया गया है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, कहीं पे गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कुछ अलॉट किया है, तो उसमें कोई भी हमारे वफ़ के अंदर एक प्रॉपर्टी भी जो इलीगली एक्वायर्ड नहीं है, अगर कोई वफ़ इलीगली एक्वायर्ड है तो वफ़ हो ही नहीं सकती। तो हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो आज एनक्रोच हो चुकी है, उसको आज बचाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस कौम के पास अगर आज क्या है तो वफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे हमारे गरीबों को, हमारे उलेमा को, हमारा जो इस्लामिक कल्चर है उसको बचाने का एक ओनली एंड ओनली सोल्यूशन है। इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और बीजेपी को इस कॉन्स्पिरेसी में जीतने और उनको जीत हासिल होने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।